نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد میں آج ملک بھر میں جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ مجالس میں مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کی جا رہی ہے اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں اور قصبوں میں یوم عاشور کے جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں۔ ملک بھر میں یوم عاشور پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کنٹرول روم سے کیمروں کے ذریعے جلوسوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ پاک فوج کے دستے بھی کسی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے سٹینڈ بائی ہیں۔ جلوسوں کی کیمروں کے ذریعے نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں موبائل فون سروس کہیں جز معطل ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس محفل شاہ خراسان نشتر پارک سے برآمد ہو گیا ہے۔ جلوس میں عزاداران حسین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ جلوس کے راستے میں سبیلیں لگائی گئی ہیں جہاں نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ دیکھیے ذوشان احمد کی رپورٹ۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں کراچی میں عاشورہ محرم کا مرکزی جلوس محفل شاہ خراسان نشتر پارک سے برآمد کر لیا گیا۔ جلوس سے قبل علامہ شہنشاہ نقوی نے نشتر پارک میں مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے واقعہ کربلا اور میدان جنگ میں اہل بیت کی عظیم قربانیوں پر روشنی ڈالی، جس کے بعد جلوس ریڈیو پاکستان جامع قلعت اور بولٹن مارکیٹ سے ہوتا ہوا نماز مغربین کے بعد حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ خارادر پہنچے گا، جہاں محفل شام غریبہ منعقد کی جائے گی۔ انتظامیہ کی جانب سے جلوس کی سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جلوس کے ہمراہ اور روٹ کے دونوں اطراف تعینات ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیمیں بھی موجود ہیں۔ اونچی عمارتوں پر ماہر نشانہ باز بھی تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ جلوس کی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ جلوس میں شریک ہزاروں عزاداروں کے لیے راستے بھر میں سبیلیں لگائی گئی ہیں جہاں نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کراچی میں عاشورہ محرم الحرام کا مرکزی جلوس اس وقت ایمپریس مارکیٹ صدر کے مقام پر موجود ہے، جہاں عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ جلوس کے شرکاء اب سے کچھ دیر بعد تبت سینٹر پہنچیں گے، جہاں نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ جلوس میں ہمارے نمائندے ذیشان احمد موجود ہیں، ان سے مزید صورتحال جان لیتے ہیں۔ جی ذیشان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، کراچی میں عاشورہ محرم کا مرکزی جلوس اس وقت ایمپریس مارکیٹ پہنچ چکا ہے، جہاں پر عزاداروں کی جانب سے نوحہ خوانی ماتمداری کی جا رہی ہے، زنجیر زنی بھی کی جا رہی ہے۔ کچھ وقفے کے بعد عزادار جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ جلوس دوبارہ احمد جناح روڈ پر پہنچے گا، جہاں پر تبت سینٹر کے سامنے نماز ظہرین کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس کے بعد سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ جلوس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی راستے پر پہلے صدر سے ہوتا ہوا احمد جناح روڈ پہنچے گا اور اس کے بعد جامع قلعت مارکیٹ اور بولٹن مارکیٹ سے ہوتا ہوا پھر اندرون خارادر کی جانب ٹرن لے گا اور حسینیان ایرانیان امام بارگاہ پر اس کا اختتام ہوگا۔ جلوس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد عزاداروں کی موجود ہے، جن کی سہولت کے لیے جلوس کے راستے میں بہت مقامات پر جو ہیں وہ سبیلیں قائم کی گئی ہیں، جہاں پر پانی اور مشروبات کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انتہائی سخت سیکیورٹی جلوس کو فراہم کی گئی ہے۔ جلوس کی جو ہے وہ فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے جلوس کی ہم وقت نگرانی جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے۔ جلوس کے ساتھ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ جلوس کے آگے اور پیچھے رینجرز کے اور پولیس کے دستے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جلوس کو جو ہے وہ بوت طرف جو اسکاؤٹس ہیں ان کی سربراہی میں جلوس جو ہے وہ باکس سیکیورٹی کے اندر جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اسنیپر ڈاگس کی مدد سے سویپنگ اور سرچنگ بھی کی جا رہی ہے۔ بی ڈی ایس کی ٹیمیں بھی جلوس کے ہمراہ تعینات کی گئی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ آگے سویپنگ اور سرچنگ کی جاتی ہے اسنیپر ڈاگس کی مدد سے اور آلات کی مدد سے، اور اس کے بعد جلوس کو آگے بڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو اب سے کچھ دیر کے بعد جلوس جو ہے وہ دوبارہ احمد جناح روڈ پر پہنچے گا، جہاں پر تبت سینٹر کے مقام پر نماز ظہرین ادا کی جائے گی اور اس کے بعد جلوس جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور نماز مغربین کے وقت اس کا اختتام جو ہے وہ حسینیان ایرانیان کھارادر پر ہوگا۔ لاہور میں 10 محرم الحرام کا شبیہ جناح کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مغرب کے وقت کربلا گام شاہ اختتام پذیر ہوگا۔ عزاداروں کی جانب سے زنجیر زنی کی جا رہی ہے، جبکہ نوحہ خان نوحے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ عزاداروں کو جامع تلاشی کے بعد جلوس میں شرکت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جلوس کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں نمائندہ اب تک لاہور سبطین علی سے۔ سبطین، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस जो अपनी रवायती रास्तों पर जो गामज़न है और जुलूस के रास्ते में जाने वाले जो रास्ते वहाँ सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस में दाखिल होने वाले जो है आज़ादारान है उनको बाकायदा जो मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट के ज़रिए चेक करने के बाद जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त मेरे अकब में देख सकते हैं इस वक्त मातमी हजरात जो है वो सीना को भी कर रहे हैं और नौखानी जो है वो उसका भी सिलसिला जारी है। कानून नाफज करने वाले इदारों ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। आज जो कि 10वीं मुहर्रम के सुबह से ही बारिश का सिलसिला भी जारी। बारिश के बावजूद जो है सड़कों पर पानी भी जमा, उसके बावजूद अकीदतमंद जो आज़ादाराने हैं वो अपना जलसा जुलूसों में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। जी, क्वेटा में मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिराबाद से बरामद हो गया है, जो इस वक्त अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा नूर इलाही बुकटी से। नूर इलाही, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह नासिराबाद अलमदार रोड से बरामद हो चुका है, जो इस वक्त अपने रिवायती रास्तों पर रवान दवा है। जुलूस यहाँ से मिकानगी रोड, मिशन रोड और इसके बाद वहाँ पर मिज़ान चौक पर पहुँचेगा, जहाँ पर उलमा जो है खिताब करेंगे। इसके बाद नमाज ज़ोहरैन भी वहाँ पर अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहरैन के बाद जुलूस दोबारा अपने मुकर्रर रास्ते पर जो है वो रवान दवा होगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। 4000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि इसके बाद दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो अलग यहाँ पर ड्यूटी कर रही है। जुलूस के रास्ते जो है उनकी फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है, जबकि तमाम जुलूस के रास्ते पे CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। तमाम यहाँ पर जो इंतज़ामिया उनका ये कहना है कि जो यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं वो इंतहाई इत्मीनान बख्श हैं, उससे हम मुतमैन हैं। तमाम ये जुलूस जो है शाम को मगरिब को जाके दोबारा इमाम बारगाह नासिराबाद हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी मातमी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद हो गया है, जो अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हफीज़ मक्सी से। हफीज़, इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त जुलूस कहाँ मौजूद हैं और मज़ीद क्या अपडेट करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से? जी बिल्कुल, यौम आशूर का मरकज़ी मातमी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद हो चुका है, जो अपने रिवायती रास्तों पर जो है वो गामजन है। और इसी तरह से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, पुलिस की भारी नमत है, जबकि पुलिस के 5000 से ज़्यादा जो है वो एहलकार हैं। इसी तरह से रेंजर्स के जो है एहलकार भी यहाँ पर जो है वो तैनात हैं, जो जुलूस के हमरा चल रहे हैं। और इसी तरह से आपको ये बताते चल रहे हैं कि इस मरकज़ी मातमी जुलूस में तकरीबन 250 से ज़ायद जो है वो अंजुमन मुख्तलिफ रूट से जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगी, जो इस मरकज़ी मातमी जुलूस के साथ चलेंगी। और इसी तरह से आपको ये बताते चल रहे हैं कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उसमें जो है वो इंतहाई फुल प्रूफ किए गए हैं, जिसमें खुफिया कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग जो है सिटी थाने में की जा रही है। जबकि SSP हैदराबाद, ASP समेत मुख्तलिफ जो है अफसरान यहाँ का जो है वो मुसलसल जो है वो दौरा कर रहे हैं और सिक्योरिटी को चेक किया जा रहा है, जबकि कमांडोज़ को भी जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। इसी तरह से आपको ये बताते चलें कि 7 से ज़्यादा जो है वो वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं, जहाँ से जो है वो आज़ादारों को आने की जो है वो इजाज़त दी जा रही है और उनको जो है वो जामे तलाशी के बाद अंदर छोड़ा जा रहा है। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि मरकज़ी मातमी जुलूस जो है अपनी रवायती रास्तों पर गामजन है, जो तकरीबन मगरिब के औकात में करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जी, मुहर्रमुल हराम के आखिरी अय्याम में कब्रिस्तान जाने वाले रास्तों पर रंग बिरंगी मिट्टी के बर्तनों के आर्जी बाजार का क़याम भी बहुत देरीना है, जहां नजर न्याज से जुड़ा मिट्टी के बर्तनों का कारोबार भी अपने उरूज पर पहुंच जाता है। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे जान अफजल। यौम आशूरा के रोज़ कब्रिस्तान जाकर अपने प्यारों को याद करने की रिवायत जितनी पुरानी है, वहाँ कब्रिस्तान की जानिब जाने वाली सड़क पर रंग बिरंगी मिट्टी के बर्तनों के आर्जी बाजार की रिवायत इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है, जहाँ नजर न्याज की कटोरियों से लेकर मिट्टी के गिलास और रंग बिरंगी सजावटी अशिया कब्रिस्तान में आने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जो करती हैं। कब्रिस्तान के लिए आए हैं, इधर मेला लगा हुआ है, हम डेकोरेशन के लिए सामान ले रहे हैं और बच्चों के लिए भी सामान ले रहे हैं। मिट्टी के रंग बिरंगी इन खूबसूरत बर्तनों को देखकर कब्रिस्तान आने वालों की आंखें खीरा कर देती हैं। बड़े तो बड़े, बच्चे भी इन खूबसूरत बर्तनों की खरीदने की जिद जरूर करते हैं। अय्याम अशूरा में मिट्टी के बर्तनों में नजर न्याज देने की कदीमी रिवायत के बायस इन बर्तनों की मांग में इजाफा हो जाता है। मुहर्रमुल हराम में सख्त सिक्योरिटी के बायस अय्याम अशूरा के हवाले से कई दीरीना रिवायात दम तोड़ती नजर आ रही हैं। इंतजामिया का फर्ज है कि इन दीरीना रवायात का ख्याल रखें
कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ जान अफजल, पेशावर। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने यौम आशूर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि यौम आशूर अजीम तर मकसद के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने का दर्स देता है। शहादत इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा जुल्म और जबर के खिलाफ हर कीमत पर डट जाना है। हज़रत इमाम हुसैन ने तादाद कम होने के बावजूद इस्लाम के उसूलों इक़दार से दस्तबरदार होने से इनकार किया। सदर ममलिकत ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की हकीकी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदान और साथियों समेत अपनी जान कुर्बान कर दी। ये एक याद दहानी है कि हमें माशरे की अजीम तर भलाई और इंसानियत की बेहतरी के लिए ज़ाती आसाइशों और ख्वाहिशात को तर्क कर देना चाहिए। यौम आशूर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि यौम आशूर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहरी तारीख़ी और रूहानी अहमियत रखता है। हज़रत इमाम हुसैन ने असहाब और अहले बैत के साथ करबला की जंग में जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी हमें गैर मुतज़लज़ल ईमान और इंसाफ के हसूल का अनमोल सबक सिखाती है। हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी से सबक हासिल करना चाहिए कि मकासद के हसूल की राह में जो रुकावटें हायल होती हैं उन्हें साबित कदमी से दूर किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा मुत्तहदा अरब अमारात मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म ने अबू ज़ैबी महल में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान से मुलाकात करके उनके भाई के इंतकाल पर पाकिस्तानी कौम की जानिब से ताज़ियत की। सदर मुत्तहदा अरब अमारात ने दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आकर हिफाजती ज़मानत लेंगे और अदालतों में पेश होकर बरी होंगे। ये बात गलत फहमी पर मबनी है कि नवाज शरीफ की वापसी और सियासत में फ़ाल करने का अख्तियार हुकूमत का था। ये अख्तियार हुकूमत का नहीं था। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के ज़रिए नाअहल किया गया जिसे कोई तस्लीम नहीं करता। एक अदालती फ़ैसला है, चाहे जज ने बाद में तस्लीम किया। उस जज ने दबाव में फ़ैसला दिया। नवाज शरीफ बहुत जल्द आएंगे और हिफाजती ज़मानत लेंगे और अदालतों में पेश होकर बरी होंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक़ डार का नाम आया और मुस्तरद हो गया। इसहाक़ डार का नाम किसी ने पेश नहीं किया, अलबत्ता ये अफवाह ज़रूर हो सकती है। इस हवाले से बातचीत हो रही है कि निगरां वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट को ही होना चाहिए या कोई सियासतदान भी निगरां वज़ीर आज़म बन सकता है। कोशिश है कि जो भी निगरां वज़ीर आज़म हो वह ऐसा काबिल शख्स हो जिस पर सबको एतमाद हो। JIT के सरबराह और मेंबरान को पेशी के दौरान धमकाने पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना किला गुज्जर सिंह लाहौर के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सरवर की वदयत में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। रिपोर्ट के मतन में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को थाना सरवर रोड में तफ्तीश के लिए बुलाया है। चेयरमैन PTI ने इस दौरान JIT के सरबराह इमरान किश्वर और दीगर मेंबरान को धमकाया और कहा कि PTI की हुकूमत वापस आ रही है, आप सुन लें, आपने रहना नहीं है। और के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के दौरान लेस्को के लगभग 100 फीटर स्ट्रिप कर गए हैं। बिजली की बंदिश और गली मोहल्लों में पानी जमा होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर से हमारे रिपोर्टर राना अशफाक अपडेट करेंगे। जी राना अशफाक। जी मैं इस वक्त गढ़ी शो हबीबुल्लाह रोड पर मौजूद हूँ। जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से 23 जुलाई से 29 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई की गई थी। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ से जो है वो बारिश का वक्फे से सिलसिला जो है वो जारी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी पिछली जानिब जो है अभी भी जो है वो पानी जो है वो तकरीबन 1 फीट से ज़ायद जो है वो गली में मौजूद है। दूसरी जानिब महकमा लेस्को की बात करें तो महकमा लेस्को के 100 के करीब जो है फीडर ट्रिप कर चुके हैं, जिसके बायस जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बिजली जो है वो अभी तक जो है वो गायब पाई जा रही है। महकमा लेस्को का ये कहना है कि बारिश बंद होते ही जो है तमाम फीडर को जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा और बिजली के निज़ाम को बहाल कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम महकमा वासा की बात करते हैं तो महकमा वासा के MD जो है वो तमाम अंडर पासिस को जो है वो चेकआउट कर रहे हैं और नशीबी इलाकों को भी देखा जा रहा है। नशीबी इलाकों की अगर बात करते हैं तो नशीबी इलाकों में अभी भी जो है वो
पानी जो है वो जमा दिखाई दे रहा है, जबकि शहरियों को जो है वो पानी से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बारिश की बात करते हैं तो इस वक्त गुलशन रावी में जो है 149 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि एयरपोर्ट के करीब जो है वो 101 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब शाला मार्केट पानी वाला तालाब में जो है वो 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कम से कम शहर लाहौर में जो है वो तकरीबन 15.15 जो है मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त शहर लाहौर का मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों के मुरझाए चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे हैं। इस वक्त शहर लाहौर में जो है वो अभी भी जो है वो हल्की बारिश का जो है वो वक्फे से सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मज़ीद जो है वो बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जी, कराची में सुबह सवेरे ही मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। करंकी, तारिक रोड, लाइन्स एरिया, सदर और नुमाइश चौरंगी पर बारिश हुई। बहादुराबाद, जमशेद रोड, नुमाइश, सोल्जर बाजार और अतराफ के इलाकों में भी हल्की बारिश वक्फे से जारी है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।